Ladies and gentlemen, let us discuss once again passive voice, active and passive voice. Now, the word active and passive that is used for the subject, whether the subject is active or it is passive. When the subject is active, we call it active voice. When the subject is passive, so we call it passive voice. So why the word active and passive? Active and passive, that is for the subject of the sentence. For example, I read a book. So I is the subject. If the subject is active, so we call it active voice. If the subject is passive, so we call it passive voice. So the activity and passivity of any sentence, that depends upon the subject. Subject is the doer, the person or the thing which is doing the action, and object is part of the sentence on which action is done. So we have subject and object as per the famous SVO construction of English sentences. SVO, subject, verb, object. When the object is not clear, so there is complement. When the subject is not clear, so again we have complement. For example, we say that this school is the best school. So this school, it is not subject like he, she, not doing the action. That's why we call it complement, subject complement. And if I say that I go to school, so again school is not object because action is not done on the school. School is only complement. I go to. Where do I go? I go to school. So that's why school is complement, school is not object. Sometime in examinations, they give you sentences where there is complement, there is no object. So you cannot make passive voice of that. And again, we have the discussion of transitive and intransitive verbs. Transitive and intransitive verbs. So please make a comment that when there is complement in the sentence, passive voice cannot be made. When there is complement in the sentence, passive voice cannot be made. If there is object, then passive voice can be made. When there is complement, passive voice cannot be made. When there is object, passive voice can be made. This is transitive and intransitive verbs. There are two types of verbs, transitive and intransitive. Some verbs can be both transitive and intransitive, but mostly we divide the words into transitive and intransitive verbs. Transitive, the word transitive comes from transit. Transit means transfer. For example, we say that Afghanistan does transit trade through Pakistan. As Afghanistan is a landlocked country, they don't have their own port, they don't have their sea or ocean. That's why they do their transit trade through Pakistan. How India can export to Afghanistan? How Middle East can export to Afghanistan? There is no way, because by air you cannot take everything. Heavy loads of commodities and merchandise
go through sea route, ports, as we have Gwadar and Karachi. Afghanistan doesn't have Gwadar and Karachi. That's why they use transit trade. You might have heard this word too much, transit trade. So the word transitive comes from transit, or we have transition, or we have transitioner, transit. So transitive verb means that when the verb can be transited or it can be transferred, the action. For example, read is a transitive verb. Why it is transitive? Because the action of reading can be transferred. I say, I read a book, or I can do the other way around. Book is read by me. Book is read by me. So for transitive verbs, we use passive voice, while intransitive verbs cannot be converted into passive voice. For example, I go to school. I go to my home. Remember that in English we say I go home, I go to house, or I go to my home. You cannot say I go to home. The preposition to doesn't come with home. To is only used with the house, because there is a difference between house and home. House is the structure, the four walls and the furniture and the rooms and the garden. That is called house. And when it is inhabited by human beings and there is a family, so that is called home. So there is a difference between house and home. As in Urdu we say ghar and makan, so both are different. That's why when we use the preposition to, we can only use it with house, because that is the structure. I go to house. So I and house, we use the preposition to. But I go home. I feel home. Yeah, I feel, I feel at my home. I go to my home. So when I say my home, then it becomes, you can use to. Only home, you cannot use to. So when we say I go to school, school is a physical place. It is not an object like book or water or meal or anything that we do or eat or read. So that's why I go to school is a complement. It is not a transitive verb. Go is not transitive verb. Go is intransitive verb. While eat, read, most of the words are transitive verbs, so we can make our passive voice from that. So please make a comment that passive voice is made for transitive verbs, and passive voice is made only when there is object. Passive voice cannot be made when there is complement. ओके तो अभी मैं आपको उर्दू में थोड़ा सा समझाता हूं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है क्या चीज़ है। इसमें एक्टिव पैसिव क्यों हम कहते हैं? एक्टिव और पैसिव जो है ये सब्जेक्ट के लिए है। ये किसके लिए है? सब्जेक्ट के लिए। तो जब सब्जेक्ट एक्टिव होता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। आई रीड अ बुक, क्योंकि आई रीड अ बुक, फोकस इज ऑन आई, ठीक है। सो दिस इज वाई इट इज एक्टिव वॉइस। बुक इज रेड बाई मी, तो द फोकस इज ऑन बुक। बुक से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, आई से नहीं। दैट्स वाई इट इज पैसिव। अब जहां कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट नहीं होता तो फिर हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। कभी कभी एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करता है और ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट डालते हैं। आई गो टू स्कूल,
तो स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि स्कूल किताब नहीं है, कोई खाना नहीं है जिसको हम खाए या जिसको हम पढ़े। और गो जो है ये एन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ट्रांजिशन जो है, तब्दीली जो है वो नहीं होती। तो ये आप जहन में रखें। नाउ वी आर टू यूज एक्टिव वॉइस एंड वी आर टू यूज पैसिव वॉइस। ट्रेडिशनली, classically, in the past, passive voice was more popular. Passive voice was more popular because individual as an agency was not important. हम तारीख में देखते हैं कि इंसान जो है बतौर फर्द जो है ये अहम नहीं था। एजेंसी जिसको कहते हैं, टेक्निकली वर्ड क्या है, एजेंसी। साइकोलॉजी और फिलॉसफी में हम यूज करते हैं एजेंसी। MIN एजेंसी, MIN एजेंट। क्या मैं कुछ कर सकता हूं एज एन इंडिविजुअल? इट्स अ वेरी बेसिक फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल क्वेश्चन। क्या मेरे इख्तियार में कुछ है, या मैं माशरे का, अपने कबीले का, रियासत का, खुदा का, कुदरत का, उसके रहमो करम पे हूं? तो दुनिया में जब तारीख हम देखते हैं तो इंसान जो है वो एजेंसी के तौर पर या एजेंट के तौर पर कभी भी फ्रंट पे नहीं था। इंसान जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था। उसका इन्हिसार होता था अपने कबीले पे, फैमिली पे, अपनी रियासत पे, लोगों पे, रिश्तेदारों पे। तो ये अभी अभी कोई 50-100 साल हो गए हैं, 100 साल भी नहीं, 50 साल कि एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो फिलॉसफी आ गई, वजूदियत, एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो उसने कहा कि यार इंडिविजुअल की भी एग्जिस्टेंस है, वन पर्सन मैटर्स। जिस तरह कि मलाला यूसुफजई कहते हैं ना कि वन बुक वन पेन, तो एक बुक या एक पेन भी मैटर करती है। ठीक है, कल हमने क्रिटिकल थियरी पढ़ी IR में। तो क्रिटिकल थियरी कहते हैं कि एक इंसान जो है वो प्रोडक्ट होता है एनवायरनमेंट का। तो हमें माहौल को ठीक करना चाहिए, तो इंसान खुद ब खुद ठीक होता है। इसके मुकाबले में लिबरलिज्म है। तो लिबरलिज्म ये कहता है कि नहीं, हर इंसान इंडिविजुअल जो है, या एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल सब कुछ कर सकता है। तो ये एक बहुत गहरी किस्म की डिस्कशन है। लेकिन तारीख हमें बताती है कि पुराने ज़माने में एक फ़र्द इंसान की कोई हैसियत नहीं होती थी। वो जब कभी माँ बनती थी या कोई बाप बनता था, कोई बड़ी चीज़ कोई बनता था, कोई दादा नाना बनता था, तो फिर लोग उसको थोड़ा बहुत सुनते थे, वरना उसकी कोई से नहीं थी। So that's why passive voice was very popular. And if now you see most of the people from rural areas and tribal societies, like Pashto speaking and rural Sindh people, Baloch people, they use more passive voice. मैं जब आपका काम चेक करता हूँ तो उन लोगों के काम में ज़्यादा पैसिव वॉइस होता है, क्योंकि वो एक ट्राइबल मेंटेलिटी के साथ चलते हैं। वो पश्तो में कहते हैं कि रकामा सर डूब खदे बेकामा खतल न दे, that we grow and we go down with the nation, with the tribe. If the tribe goes up, so we go up, and when we go down, so we go down as a whole. But nowadays in modern English, there is emphasis on active voice, that you use active voice. Passive voice is discouraged. पैसिव वॉइस जो है उसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है काम करने वाला वो रिडंडेंट हो जाता है। रिडंडेंट, रिडंडेंट, DUNDANT। रिडंडेंट मीन्स यूजलेस, वो यूजलेस हो जाता है। इंसान का कोई काम उसमें नहीं होता पैसिव वॉइस में, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो इन मॉडर्न इंग्लिश, whenever you read notes or Google or any modern book, so they will always encourage you to use active voice, especially in personal writing, blogging, content writing, discussions. So अब हम पाकिस्तान में जो है लोग आर समझते हैं कि जब मैं कहता हूँ मैं ये करूँगा और मैंने ये किया, लोग समझते हैं यार ये बड़ा मुतकब्बिर है, ये गुरूर वाला बंदा है, अपने आप को अहमियत देता है।
लेकिन वेस्ट में, डेवलप्ड वर्ल्ड में अब मैं जो है इंपॉर्टेंट बन गया है कि मैं भी कोई चीज हूं, मुझे भी आपको सुनना होगा. बट इन academic writing still this passive voice is very very popular in academic writing, because academic writing is impersonal. Academic writing is impersonal. Please make a comment. Academic writing is impersonal. That's why we use passive voice more in the academic writing. Impersonal means that there is no personal pronouns. Impersonal. There is no personal pronouns. Personal pronoun जो है वो हम यूज नहीं कर सकते, because academic writing is for everybody. It is general writing. It is generalized writing. It is not specific writing. एक बंदा जब किताब लिखता है तो वो पूरी दुनिया के लिए लिखता है, ठीक है, खासतौर पर एकेडमिक. अब एकेडमिक में रिलीजन वगैरह जो है, मजहब, वो निकल जाता है, क्योंकि मजहब जो है आप अपने फिरके और अपने मजहब की बात करते हैं कि जी मेरा मजहब अच्छा है, मेरा फिरका ठीक है, मेरा खुदा ठीक है, मेरा पैगंबर ठीक है, बाकी सारी बातिल है, बाकी सारी गलत है. तो मजहबी जो गुफ्तगू होती है उसमें आप एकेडमिक को नहीं हो सकती. एकेडमिक में अपनी पूरी दुनिया को बात करनी है, को अपनी कोई ऐसी बात नहीं करनी कि कोई उसको माइंड करे या कोई उसको अफेंड करे. तो आपने पूरी दुनिया को साथ ले चलना होता है. तो इस वजह से जो मजहबी लोग होते हैं वो एकेडमिक नहीं बनते. अल्लामा इकबाल जैसे लोग जो है उसको भी मजहब ने इसलिए ख़राब किया कि वो एक बहुत बड़ा एकेडमिशियन नहीं बना, एक बहुत बड़ा फिलासफर नहीं बना. मुसलमान पाकिस्तान में या ईरान वगैरह में कुछ लोग तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसने पूरी दुनिया जो है उस पे नाम इसलिए नहीं बनाया कि उसने सिर्फ मुसलमानों की बात की या सिर्फ इस खित्ते की बात की. सो एकेडमिक राइटिंग इज impersonal, where you have to write for everybody. You don't know who is your examiner, कि आपका एग्जामिनर कौन है. वो लिबरल है, सेकुलर है, मौलवी है, जो है ना एक्सट्रीमिस्ट है, पुरतशद्दुद है, फिलासफर है, आम बंदा है, कौन है. तो आपने ऐसी गुफ्तगू करनी है जो सबको काबिल कबूल हो. आपको कोई पता नहीं कि आपका एग्जामिनर जो है वो किस तरह का बंदा है. सो दैट्स वाई वी राइट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज. यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. साइंस इज यूनिवर्सली वेरीफाइएबल. अब साइंस का कमाल ये है कि जो साइंटिफिक बात होती है वो हर जगह एक जैसी होती है. देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट, देयर इज नो सिचुएशन. उसमें सिचुएशन नहीं कि जी ये पाकिस्तान है तो इसमें पाकिस्तान में तो इस तरह होता है और जी जापान में इस तरह होता है. साइंस जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसी है. केमिस्ट्री की किताब जो है जापान, अमेरिका, पाकिस्तान सब में एक जैसा है. सो साइंस इज यूनिवर्सली वेरीफाइएबल. नाउ दिस वाज इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस. आज मैंने आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए थे और हर क्वेश्चन का मैंने अलग जवाब आपको नोट्स में दिया है. एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का सिंपल फार्मूला है कि आपने सब्जेक्ट जो है उसको एंड पे ले जाना है, ऑब्जेक्ट को आपने पहले लाना है. ठीक है, मसलन आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक टी, मैं टी पीता हूं या आई टेक टी, तो आई सब्जेक्ट, टी ऑब्जेक्ट. तो मैं टी से स्टार्ट करता हूं. टी इज टेकन बाय मी, टी इज ड्रंक बाय मी, टी इज टेकन बाय मी, टी इज ड्रंक बाय मी. तो इसमें इज आ गया और थर्ड फॉर्म आ गया ड्रंक, टेकन. अगर ये प्रेजेंट टेंस है. अगर ये पास्ट टेंस है, आई टुक टी, मैंने चाय पिया, तो वही फार्मूला है, टी से आपने स्टार्ट लेना है. टी वॉज टेकन बाय मी.
टेकन वही रहेगा, इज जो है वो वाज बनता है। तो ये इसके जो है वो है क्या कहते हैं इसको, बेसिक फार्मूला है। अब जो एम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, मसलन स्टॉप योर लेक्चर, सो लेट द लेक्चर बी स्टॉप्ड। तो एम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें वो होता है कमांड या रिक्वेस्ट होता है, तो उसमें फिर हम स्टार्ट लेते हैं लेट से। उसमें हम कहां से स्टार्ट लेते हैं? लेट से। डू इट, लेट इट बी डन, लेट इट बी डन। तो ये जो इसका जो फार्मूली है मुख्तलिफ टेंस के साथ, एम्पेरेटिव सेंटेंसेस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो इसके लिए जो फार्मूला है वो बचपन में प्राइमरी क्लास में हमें पढ़ाए जाते हैं कि हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। अब इस लेवल पे, एडवांस लेवल पे, आपको थोड़ा सा जो है एक्टिव पैसिव को जो चेंज करना है वो तो आपको आना चाहिए। लेकिन लेट मी सी कि आप लोग जो है कितना पैसिव वॉइस जो है वो यूज करते हैं अपने राइटिंग में, एंड हाउ कैन यू बिकम एकेडमिक राइटर। सो द टॉपिक इज पैलेस्टाइन इशू, पैलेस्टाइन इशू। ठीक है, तो पैलेस्टाइन इशू पे आप कुछ सेंटेंसेस लिखे और कोशिश करिए उसमें पैसिव वॉइस यूज करें। ये जो है ना, ये गूगल आपके लिए चेंज करेगा। सईद अहमद साहब, थोड़ा सा मेरे लेवल का ख्याल करें। अभी मैंने जो आपको टास्क दिया है वो करें। आपकी उम्र जो है 20-25 साल होगी, अभी तक आपने डू यू राइट अ लेटर, इज अ लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय यू। तो इस तरह की चीजें जो गूगल में आप चेंज कर सकते हैं, लिख के गूगल में चेंज डू यू राइट अ लेटर इनटू पैसिव वॉइस। तो ये प्रैक्टिस करें आप अपना। और मैंने नोट्स में आपको बहुत ज्यादा चीजें दी है, तो थोड़ा सा अपना माइंड सेट जो है वो थोड़ा सा ऊपर करें। ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे, ये तो आप खुद अपना प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाए। नाउ स्टार्ट राइटिंग। आपको कंपोजिशन जो है बड़ी जरूरी है कि आप कंपोजिशन करें, पैराग्राफ लेके सेंटेंस लेवल से ऊपर जाए, वरना सारी जिंदगी इसी में रहोगे। ये जो एक्टिव पैसिव है ये 6th क्लास, छठी 7वीं क्लास की चीजें है। प्लीज राइट 3-4 sentences टुगेदर। सना खान, missiles were fired by Hamas. Write 3-4 sentences together. Sabotage is not a good word. Palestine is destroyed, annihilated, damaged. सबोताज जब एक्शन होता है ना, कोई स्पाई या कोई लिमिटेड लेवल का, सो दैट वी कॉल्ड सबोताज। नट सेंटेंसेस, राइट 3-4 sentences टुगेदर, इकट्ठा लिखे, पैराग्राफ लिखे। इंप्रूव योर लेवल, थोड़ा सा अपना लेवल इंप्रूव करे, सेंटेंस लेवल से निकल जाए। द पैलेस्टाइन इशू इज वंस अगेन, इज थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स इज वंस अगेन। क्या तुम्हारे दिमाग में जो है ना कोई प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक किस्म का प्रॉब्लम है, वैक्यूम है, या आप थोड़ा सा प्लीज नैरो ट्रांसमीटर जो है वो आप अपना इंप्रूव करें। कोई बादाम वगैरह या कोई इस तरह के जो है ना ये सब्ज चाय, सलाद, पत्ते खाए, क्योंकि इमरान खान आपके दिमाग में स्पेस है, वैक्यूम है, अब में फ्लो नहीं है, आप दरमियान में रह जाते हैं। सो द पैलेस्टाइन इशू इज वंस अगेन क्या, ये आपका एक दिमागी मसला है। ये कोई सीरियस मसला नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को होता है, वो जंप करते हैं, मतलब उनको स्पेस नजर नहीं आता, वो ये समझते हैं कि सारा सारा मैंने ठीक लिखा है। द पैलेस्टाइन इशू इज वंस अगेन
in the limelight is thousands of missiles were fired by Hamas. As a result, Israel Iron Dome technology anticipated thousands of missiles. तो thousands of missiles से अगर आप निकल जाते हैं, रिपीटिशन न किया करें. एक गरीब नालायक इंसान की निशानी यही होती है कि वो रिपीटिशन करता है, उसके पास मजीद नहीं जाता, वो उसी चीज़ को आगे पीछे घुमा लेता है. एग्जामिनर को ये चीज़ पसंद नहीं है. एग्जामिनर कहते हैं नई नई बातें करो, नया नया डेटा दो, नया इंफॉर्मेशन दे दो. तो फिर भी पैसिव वॉइस का हमारा एक्सरसाइज है. तो इसमें आप पैसिव वॉइस में क्या करोगे? thousands of missiles were anticipated नहीं होता यार. एंटिसिपेट का मतलब क्या है? एक चीज को एडवांस में बोलना. इंटरसेप्टेड, पकड़ना जो है वो क्या है? इंटरसेप्टेड. thousands of missiles were intercepted by the Israel Iron Dome technology. Were intercepted by Iron Dome technology. Shamal, there should be coherence and cohesion in your writing, not disjointed sentences. You are describing Palestine issue. अब जरूरी कि हर सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस हो. Palestine is decided by the Israeli government. Israel is backed by America. अब अमेरिका कोई कंट्री नहीं है दुनिया में. ये पाकिस्तान में लोग उसको अमेरिका कहते हैं. कंट्री का नाम क्या है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. क्योंकि साउथ अमेरिका भी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका भी अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा भी है. तो एग्जामिनर इसको सख्त नापसंद करता है जब हम झूठ बोलते हैं. ये झूठ है कि अमेरिका के नाम के कोई कंट्री नहीं है दुनिया में. Palestine government is fully supported by Hamas. ये कौन सी बात है? Palestine government is fully supported by Hamas. Palestinian people are sympathized by many Arab countries. Sympathize by जो है ये सही कंस्ट्रक्शन नहीं है. Many Arab countries have sympathies with Palestinians. Have sympathies. Sympathize by जो है it is not English language. तो जरूरी नहीं कि आप खामखा पैसिव वॉइस करें, उसका कोई सेंस भी हो, कोई मतलब भी हो. Palestine issue is one of the hot spot of the world. क्या करेंगे यार, ये तो बड़ा अजीब चक्कर है. इसको खुद पढ़ो ना, अब्दुल गफार साहब, ये आपने क्या लिखा है? Palestine issue is one of the hot spot of, अच्छा one of the hot spots होता है, hot spots प्लूरल, क्योंकि हॉट स्पॉट ज्यादा है. ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड एट मिडिल ईस्ट. फिर मिडिल ईस्ट जो है कॉमन नाउन आपके तौर पर में लिखा है. तो पैलेस्टाइन इशू मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है या पैलेस्टाइन लोकेटेड है? ये लोकेटेड कहां से आ गया? और मिडिल ईस्ट जो है उस पर भी आपने उसको गलत लिखा है. द रीसेंट इशू वाज इन्वोक्ड. अच्छा यार, ये आप लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी यार, ये तो तबाही है. हद से ज्यादा मेहनत की जरूरत है आपको. इतना फलस्तीन हम करते हैं, आप इसको जरा लिखे ना, जरा रीड करिए. फलस्तीन पे लोग कैसे लिखते हैं, डॉन कैसे लिखता है, वाशिंगटन पोस्ट कैसे लिखता है, इस तरह लिखता है.
was invoked by the attack construction इंग्लिश में यार, अब खाम खा लफ्ज डालते हैं. Started as a consequence of the attack of Hamas on Israel. अब वीर से पहले अपने फुल स्टॉप लगाया है. Where 1400 Israelis were dead. And this Israeli forces retaliated on Gaza. Retaliated on Gaza नहीं होता, retaliated बस, उन्होंने retaliate किया. And attacked on Gaza and killed more than 5,000 people. तो भाईजान मसले का हल जो है रीड टू राइट. अभी जरा गूगल में देखें ना कि पैलेस्टाइन इशू डालो. मैंने पाकिस्तान अफेयर्स में भी आपको पैलेस्टाइन पे आर्टिकल्स दिए हैं. उसको जरा पढ़े कि लोग कैसे पैलेस्टाइन को डिस्क्राइब करते हैं यार. इस तरह डिस्क्राइब करते हैं. रीड टू राइट. जब आप पढ़ते हैं ना किसी चीज को, तो सिर्फ पढ़ना मत कि मैं नॉलेज गेन कर रहा हूं. नहीं, ये भी लैंग्वेज भी देखो कि इस बंदे ने कैसे लिखा है, मैं भी उसी तरह लिखूंगा. ये आप में चेंज आएगा, वरना मुश्किल है. इजराइल स्ट्राइक्स आर डैमेजिंग पैलेस्टाइनियन होम्स. तो सना खान, जब हमारा प्रैक्टिस ही पैसिव वॉइस है, तो आप इसको पैसिव वॉइस में भी तो लिख सकती है ना कि पैलेस्टाइनियन होम्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय इजराइल. अब ING वाले वर्ड्स में बीइंग आता है, बीइंग, BEING पैसिव वॉइस में. पीपल आर सफरिंग बाय इजराइलीज एक्शंस एंड कूप्स, पता नहीं क्या चीज है. आर सफरिंग, ये तो भी एक्टिव वॉइस हो गया. सना खान के जुमलों में एक भी पैसिव वॉइस नहीं है. पीपल्स आर बीइंग सफर्ड बाय इजराइलीज. सिर्फ बाई लगाने से पैसिव वॉइस नहीं बनता. फूड्स एंड मेडिसिन शॉर्टेज इज आल्सो सफरिंग बाय गजाज रेजिडेंट्स. स्ट्रक्चर आप लोगों का चेंज करना पड़ेगा. आपका स्ट्रक्चर में बड़ा प्रॉब्लम है. Rahmanullah. On 7th October, barrages of rockets were fired by Hamas on Israel and subsequently infiltration were carried out by Hamas Liberation Organization. अब ये देखो कि हमास का नाम ये है, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. In retaliation, ruthless bombardment was started by Israel on Gaza Strip in order to annihilate Gaza Strip. अब ये वही यूज्ड है दोबारा, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप. एक नालायक बंदे की ये निशानी है कि वो एक चीज को रिपीट करते कि उस गरीब के आगे कुछ उसको आता नहीं है, बस वही आता है और उसको आगे पीछे करता है, दिखाता है. हालांकि मैं आपके लिए क्लैपिंग करने वाला था कि एक्सेलेंट, ये रहमान ने मुझे थोड़ा सा सेटिस्फाइड किया, आपका जबरदस्त है. अगर आपने गजा स्ट्रिप 2 दफा ना लिखते. प्लीज अवॉइड रिपीटिशन. रिपीटिशन को अवॉइड करें. एक चीज को 2 दफा मत लिखें. नहीं आता खामोश हो जाओ. In retaliation, ruthless bombardment was started by Israel in order to annihilate Gaza Strip. तो अब एक दफा ऑन गाजा स्ट्रिप, फिर गाजा स्ट्रिप को आप निकाल सकते हैं वन टाइम. नो रिपीटिशन. ये अपने सब मोटा मोटा बड़ा बड़ा लिखे कि मैं उसी चीज को दोबारा नहीं लिखूंगा जो एक दफा मैंने लिख लिया है. सईद, पैलेस्टाइन इज नाउअडेज सफरिंग फ्रॉम वेरी हॉरिबल सिचुएशन. इसको पैसे वॉइस में लिखो. पैलेस्टाइन इज नाउअडेज बीइंग सफर्ड फ्रॉम वेरी हॉरिबल सिचुएशन.
Hamas, one of the militant groups in Palestine, attacked on Israel 100 of missiles. अब इसको पेस वॉइस में कैसे होगा कि Israel was attacked by Hamas, one of the militant groups with hundreds of missiles. Israel was attacked by Hamas. तो ये passive voice होगा. In a reaction, Israeli government jumped on Palestinian people with a strong jump on सही नहीं है. Invaded, attacked, इस तरह के लैंग्वेज यूज करो. And destroyed almost every inch of Gaza. Thousands of civilians, singular plural का ख्याल रखना है आपने. Killed by Jews forces, Jewish या forces of Jews. इजरायली फोर्स लिखिए क्योंकि उसमें अरबी भी है. आपको पता है कि इजराइल में हर पांचवा बंदा अरबी है, मुसलमान अरबी है. तो हो सकता है वो अरबी लोग हो, जूज ना हो. इजराइली जो है वो कंट्री का नाम है. ये हमें पढ़ाए जाते हैं यहूद और नसारा और मुसलमान, इस चक्कर में हमें डाला जाता है. हालांकि वो इजराइल जो है वो एक कंट्री का नाम है. उसमें हर पांचवा बंदा अरबी मुसलमान है. Thousands of civilians killed by Jews. So the situation between these two nations is very complicated now and don't seem normal in future. अच्छा है, बुरा नहीं है. टू नेशंस की जगह टू पीपल, क्योंकि पैलेस्टाइन अभी तक नेशन एज सच नहीं है. Okay. Abdul Ghaffar, Gaza was attacked by Israeli forces. Israeli forces have been killing the civilians of Palestine. There is violation of Geneva Convention by the Israeli forces. ठीक है. Imran Khan, the recent Palestinian issue is one is again deteriorated as Hamas, a terrorist group, and thousands of missiles fired thousands of missiles. टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तानी एग्जाम में आप मत लिखिए, क्योंकि आप पाकिस्तानी एग्जाम के लिए अपने आप को तैयारी कर रहे हैं. हमास टेररिस्ट भी है, लेकिन इसको आप टेररिस्ट नहीं लिख सकते. पाकिस्तान में लोग उसको टेररिस्ट नहीं समझते. इन द रिस्पांस इसराइल इंटरसेप्टेड मोर देन, बाकी ठीक है. हारिस जमाली, पैलेस्टाइन पीपल्स आर बीइंग. अब मैंने कितनी दफ़ा, मैं थक गया, लेकिन आप लोग नोट नहीं करते कि ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा. वही गलती है जो आप 5 साल पहले कर रहे हैं, और 500 दफ़ा मैं आपको कहूँ कि यार न करो, फिर भी आप आइंदा 500 साल वही गलतियां करोगे, तो फिर क्या फ़ायदा हो गया. कितनी दफ़ा मैंने आपको कहा है कि पीपल्स का मतलब है नेशंस, अक़वाम. पीपल जो सिंगुलर है उसका मतलब है लोगो. तो पैलेस्टाइन पीपल या द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन आर बीइंग बुचर्ड बाय द इजरायली गवर्नमेंट द रिसेंट अटैक. बाकी ठीक है, गुड. हारिस जमाली. Hamza Khan, the recent bloods of Hamas and Israel surprised the whole world as Israel's intelligence network is considered one of the great intelligence agencies. In a self-defense, Hamas was attacked by Israel. Furthermore, the destructive action was condemned by many countries including Pakistan. Excellent. Hamza Khan, very good. अब देखो ना, आपको किसी ने दिल भी दिया है, मैं भी आपको दिल देता हूँ. ये किसने दिया है? इमरान खान ने. तो अच्छी बात है, गुड. हमजा खान, वेरी गुड, एक्सेलेंट. अच्छा, मसले का हल क्या हो गया? मसले का हल ये है, मसला तो है कि आप लोग नहीं लिख सकते, एकेडमिक राइटिंग आपसे नहीं होती. माई नेम इज़ हमजा खान, माई नेम इज़ रहमान, आई एम द रेजिडेंट ऑफ विलेज. इस तरह की तो अंग्रेजी आपको आती है, लेकिन आगे आप नहीं जा सकते. तो आगे जाने के लिए जो है आपको क्या करना होगा? रीड टू राइट. ठीक, जब आप रीडिंग करते हैं एक टॉपिक पे, तो आप कहेंगे कि मैंने इसी तरह लिखना है. अपने राइटिंग को स्टाइल करो, फिर लिखो, ताकि मैं उसको एवेल्युएट करूं.
Nowsherawan. Israel was attacked by Hamas, leading to the deaths of 1,400 Israeli people and triggering the recent Palestine issue. In response, Gaza was targeted by Israeli. अभी देखो ना ये पैसिव वॉइस है. Good, Nowsherawan. Excellent. सो वेरी गुड पार्टिसिपेशन. आई डोंट डिस्करेज यू. मैं आपको डिस्करेज नहीं करता, लेकिन डॉक्टर की तरह मैं आपको आपका मरज बताता हूँ. आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आपका मरज जो है वो बता दूँ. ठीक है. मरीज को अपने मरज पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए. उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपना मरज दूर करना है, क्योंकि डॉक्टर आपको इलाज भी बता रहा है. और इलाज क्या है? रीड टू राइट, रीड टू राइट, रीड टू राइट. जब आप रीडिंग करते हैं नोट्स को, बुक्स को, लिसनिंग भी करते हैं, तो उसको ये कहो कि मैंने भी इसी तरह राइटिंग करनी है. सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मत पढ़ो. Shamail, the ongoing situation between Israel and Palestine needs international interference. अब देखो ना पैसिव वॉइस में आप इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि आज क्लास पैसिव वॉइस है तो हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. इंटरनेशनल इंटरफेरेंस इज नीडेड फॉर द ऑनगोइंग सिचुएशन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन. इज नीडेड ये पैसिव वॉइस हो गया. नीड्स ये एक्टिव वॉइस है. The brutal attacks on Palestine by Israel and USA support show and USA support, no, with USA support. यहां आपने प्रीपोजिशन लगाना है, कंजंक्शन नहीं लगाना. आपको याद होगा मैंने जो लेक्चर दिया था तो मैंने प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन को इकट्ठा किया था. क्यों किया था? कि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. With USA support show the influence of Israel on powerful nations. एक्सेलेंट, ज़बरदस्त. अभी मेरे दो और भी क्लासेस है, लेकिन प्लीज़ रीड करें राइटिंग के लिए, और फिर जो है मेरे सामने राइटिंग करें ताकि आपका लेवल अप हो जाए. कब तक आप इस तरह के बच्चों जैसे राइटिंग करोगे? ऑल द बेस्ट. सी यू नाउ इन नेक्स्ट क्लास ऑफ आई थिंक फिलॉसफी, एसे क्लास. यस.